somewhere uncomfortable, but still it is important for your someone जो अपने emotions हमेशा suppress करके रखना चाहते हैं. So I think this नई bondings है या नए काम में या फिर पढ़ाई में. Welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sahadev, and today we have a very special guest who is an NLP practitioner, tarot card reader, sound healer, and now she will introduce herself. Welcome to my episode Between Strangers. Okay, hello everyone. So I am Divyanka Sahadev, and professionally I am a tarot card reader, a sound healer, numerologist or a reader, and also a yoga teacher, and I also practice NLP as well. So yes, that's it professionally about me. So who are you behind those profession? Like what you did, your journey towards this spiritual journey? Okay, so who are we? I think this is the question where everyone is trying to look for who truly we are, and that's why I also mentioned when you told me to introduce yourself, I mentioned professionally I am this, but like overall I think we are all just human trying to figure out life. So that's how I would introduce myself, trying to see what makes me curious. I try to find new things, learn about new things, and also somewhere trying to help alongside. Okay, so how you end up doing this? ऐसे मतलब क्या हुआ, क्या इंस्टेंट आई, कुछ किसी ने इशारा किया, यूनिवर्स एंड ऑल? I think this was something which I always had a calling for. मतलब मैं psychology की तरफ काफ़ी inclined थी, and I also did journalism in graduation. So I think I was always into a search जहाँ पर मैं शायद front पर आकर कुछ बात कर सकूँ, जो मेरे thoughts हैं, जो मेरी thinking है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ. So that was the core idea. That's why I did journalism, and while doing journalism I love to write, I love to explore. Like I said that I want to experience new things in life as well. So that was the core idea. When I was doing journalism, I found out my interest in writing and all of that, in learning new things again. So that shifted my mindset towards psychology. तो जब psychology की तरफ मैं थोड़ी inclined हुई तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि okay, what else we can do, and then tarot just came up. जब जैसा मेरे को एक idea आया कि maybe psychology की तरफ हम कुछ guide कर सकते हैं, शायद लोगों की help कर सकते हैं खुद पढ़ के obviously. तो tarot just came up in my life, and I always believe in taking quick actions, because जितना हम उस thought के बारे में सोचते रहते हैं उतना हम डिसीजन मेकिंग डिले करते हैं, उतना हम अपने ऊपर डाउट बहुत करने लगता है. वो सेल्फ डाउट जो बहुत इंक्रीज होता है. अगर एक आइडिया है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट समथिंग इनटू इट एंड देन यू फिगर आउट. मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सब चीज़ें एक साथ सामने दिख जाती हैं. आप धीरे धीरे करके सीखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो और आपको और वेज दिखते हैं. सो आई थिंक टैरो और कुछ भी अगर मैंने लाइफ में किया हो तो वो एक इंटरेस्ट के बेसिस पे कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये शायद मैं ये करना चाहती हूँ, तो उसके बाद मैंने एक्शंस काफ़ी जल्दी लिए हैं. सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग जिससे मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी और लोगों के साथ कनेक्शंस भी इंक्रीज हो सकते हैं. हम new experiences देख सकते हैं. So I just acted upon it, and then I learned tarot, and once I got into this field, then it has been like a never-ending journey of learning since then. So that's how all it happened. आपको कितना टाइम हो गया साउंड हीलिंग, NLP और टैरो में? Okay, so जैसे मैंने बोला कि I started with tarot. It has almost been 5+ years I have been into this field, and then every year I have been adding new things. So then there was numerology, then there was NLP, and then sound healing I did in 2024. So and in yoga also I learned professional yoga, and that was last year. So with each year I focus on somewhere rebuilding myself as well. So
that I can also work on my limiting thoughts, my limiting beliefs, and eventually expand through new learnings. Okay, so for our audience, NLP, साउंड हीलिंग और टैरो एक सिंपल लैंग्वेज में बता दो ताकि ऑडियंस को भी पता चल जाए कि होता क्या है एक्चुअली. ओके, सो टैरो, अगर हम टैरो की बात करें, सो मोस्टली लोग इसको प्रिडिक्टिव टूल की तरह ही यूज़ करते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी की तरफ भी रहा है, एंड टैरो इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजी इनटू इट, कि हम लोगों के सबकॉन्शियस एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड देन इवेंचुअली वो एनर्जीज़ कैसे टर्न आउट होने की पॉसिबिलिटी रखती है, उसके बेसिस पे हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं. तो टैरो इज़ और एनी डिवाइन लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, nothing is like we are the ones predicting the future. It's all about learning the energies. It's all about, you know, giving the direction where your energies are going. So that's how you connect with these tools. So tarot also, it helps a lot in terms of understanding कि आपकी एक्चुअल में साइकोलॉजी कैसी है, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जीज कैसी है. आपको लग सकता है कि you are ready for certain things, but internally there can be a lot of doubts. तो वो सब चीज़ें जो हैं, वो सबकॉन्शियस इम्प्रिंट जो है, वो टैरो आपका एकदम दिखा देता है. एंड टॉकिंग अबाउट NLP is neuro linguistic programming. So it works on the concept of basically learning new patterns of the brain and also unlearning the negative beliefs. क्योंकि जब हम एक environment पे रहते हैं तो मोस्टली जब हम बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है तो उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो कैसे इन्वायरमेंट को देख रहा है, कैसे बिलीव्स लर्न कर रहा है. बट वंस यू गेन दैट कॉन्शियसनेस, यू हैव द पावर टू चेंज दोज बिलीव्स. सो इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग दोज पैटर्न्स, इवेंचुअली चेंजिंग योर एनर्जीज, एंड देन ऑल्सो गेटिंग द आउटकम्स दैट यू रियली वॉन्ट. सो इट इज ऑल दी connection that works. And what about sound healing? And sound healing is like sound is everywhere. चाहे वो sound आप सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे, अलग अलग frequencies पे वो sound हर जगह है, ठीक है. and हम लोग लिविंग नॉन लिविंग जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, दे आर वाइब्रेटिंग ऑन अ सर्टन फ्रीक्वेंसी. तो साउंड हीलिंग की हेल्प से, थ्रू द हेल्प ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द बोल, वी ट्राई टू अलाइन विद द करेक्ट फ्रीक्वेंसीज. हम चाहे अगर कोई एक सूदिंग सॉन्ग सुन रहे हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, हम चाहे एक बहुत हाइपर सॉन्ग सुन रहे हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है. एंड यू वुड नोटिस कि अगर आप कहीं अच्छे ऐसे इन्वायरमेंट में डांस कर रहे हो तो आपको एनर्जेटिक फील होगा. लाइक आजकल भजन्स बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, लोग कलेक्टिवली मिलके प्रोग्राम्स कर रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट वो भजन आप घर पे भी सुन सकते हो, बट जब आप वो भजन एक पूरे कलेक्टिव इन्वायरमेंट में एक सिनर्जी में सुनते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक अलग होती है. सो दैट्स हाउ यू क्रिएट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विद डिफरेंट इन्वायरमेंट सब्सटेंसेस. तो साउंड हीलिंग जो है वो इसके थ्रू ही वर्क करती है. जो हमारे बोल्स हैं, 7 बोल्स जो हमारे सेट है, वो हर एक चक्रा, हमारा जो 7 चक्रास होता है मेजर, ऑल्दो चक्रास बहुत होते हैं बट मेजर आर 7 चक्रास. तो हर एक बोल, हर एक चक्रा की फ्रीक्वेंसी के साथ अट्यून्ड है. सो जब आप साउंड हीलिंग के सेशंस लेते हो, so all those energies get balanced, and once you internally feel balanced, you get that sense of calmness, clarity, and you understand your own emotional depth. So that's how things work out. Okay, so I have a question for you. How has this profession transformed you personally? Is there any one experience that deeply touched your heart or changed your perspective on life? आई थिंक ऐसे कोई एक एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी मैं, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी न्यू जर्नी. एवरी डे इज़ अ न्यू जर्नी. सो एवरी डे यू लिसन अप सर्टन थिंग्स जिनसे आपको लगता है कि शायद ये चीज़ें आप अपने आप में भी करेक्ट कर सकते हो. सो इट्स अ जर्नी जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहती है. सो इवन दो आई एम द वन गाइडिंग पीपल, बट आई एम ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लर्निंग. चाहे वो ऐसा हो कि इस चीज़ से सीखकर मैं किसी और की क्या हेल्प कर सकती हूँ. सो इट्स अ होल जर्नी वेयर यू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे. दैट इज़ वाई मैं एक चीज़ को या फिर एक इंसिडेंट को क्रेडिट नहीं दूंगी, बिकॉज एवरी डे इज टीचिंग मी समथिंग न्यू. सो दैट्स हाउ इट हैपन्स. Okay, so I have noticed one thing. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि वो आपको सेल्फ अवेयरनेस सिखाते हैं रादर देन अ फियर.
तो टैरो में भी ऐसा कुछ है? हाँ, जैसे मैंने बात करी कि टैरो इज लाइक अ सबकॉन्शियस इम्प्रिंट, तो सेम चीज़ है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी भी मतलब लोग आज उस चीज़ को ऐसे परसीव करते हैं, और बहुत सारे लोग भी हैं एक अनड्यू एडवांटेज, जिनको नॉलेज है शायद वो अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं, लोगों को डरा के पैसे कमाते हैं। एंड उसकी वजह से जो ये साइंस है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिलता है। जो लोग नहीं बिलीव करते वो उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल जो एक अनड्यू एडवांटेज लेकर इसका बेसिकली नाम खराब कर रहे हैं। तो वो फियर जनरेटेड जब चीज़ें सामने आती हैं तो उससे ऑब्वियसली लोग एक क्रिटिसिज्म आती है। एंड विद टैरो एज वेल लोग समझ नहीं पाते कि कार्ड्स है, तो कार्ड्स के साथ आपको कैसे पता है, ठीक है, आप सिर्फ नाम से कैसे पता कर सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि वो एक मेडिटेशन लेवल पे, वो एक कॉन्शियस लेवल पे हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। तो पर्सनली फॉर मी आई ऑलवेज ट्राई कि मैं फियर बेस्ड रीडिंग्स, या फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक रीडिंग है जो मे बी किसी और को एंशियस फील करा सकती है, सो एज अ रीडर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो मैसेज कैसे उन तक पहुँचाऊँ कि इट इज़ somewhere uncomfortable but still it is important for your guidance, like for your growth, सामने वाले को पढ़ के एंशियस ना हो जाए या फियर ना बैठ जाए, ताकि वो समझ आए कि वो क्यों, अगर वो चीज़ होने वाली है तो वो क्यों होने वाली है। and that energies are fluid and you can work through a lot of things। आप अपनी internal energy से आप बहुत चीज़ें जो हैं वो बेटर कर सकते हो। आप डिवाइन कनेक्शन बिल्ड करके अपने लिए बहुत चीज़ें अच्छी कर सकते हो, आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तो दैट इज़ अगेन समथिंग जो लोगों को बहुत डीप में पता होना चाहिए। सो अगेन इट्स नॉट जस्ट कि आपको एक फियर बेस्ड, कि आपने क्वेश्चन पूछा उसका एक आंसर येस और नो हुआ, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत चीज़ें जो हैं वो उसके इंटरनल लेवल पे समझनी पड़ती है। व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स, व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, तो वो फियर जो है वो आपको ओवरकम नहीं होने देगा। Okay, so many people ask astrologers and tarot card readers to predict the future. Do you think the real purpose is prediction or helping people make better life choices? I think it's definitely making, helping people to make better choices. Again, हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि it's not always about कि ये होगा ऐसा होगा. It is more about कि how you can reach to that point. Because लोगों को भी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं तो हमेशा पूछते हैं कि अरे हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे या नहीं होंगे, हमारा घर बनेगा या नहीं बनेगा, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि हाउ वी कैन मेक इट हैपन। what are the things जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। बिकॉज लोगों को भी इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड है, तो लोगों को भी क्विक फिक्स चाहिए हर चीज़ का, कि आप हमें एक रेमेडी बता दो या हम एक ये चीज़ ऐसे करने लगे कि एकदम से सब चीज़ें बदल जाएं। बट आई बिलीव कि अगेन आई बिलीव स्ट्रांगली ऑन एनर्जीज। तो जब तक आपकी इंटरनल एनर्जीज उस अलाइनमेंट में नहीं है, अगेन उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है जो आपको चाहिए, तो आप चीज़ें करते रहो, बट अगेन आप उसको हमेशा एक चेजिंग एनर्जी पे ही फॉलो करते रहोगे, है ना। देयर आर पीपल जो बहुत रिलैक्स माइंडसेट से काम करते हैं, उनके पास इजीली चीज़ें फ्लो कर जाती हैं। देयर आर पीपल जो लगे रहते हैं बट फिर भी उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। वो कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाते हैं, कितनी सारी रेमेडीज कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली because they are fear based, they are doing fear based action, they are more in the chasing energy। तो ये सब चीज़ें समझना, आई थिंक एक अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट कि जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग इस फील्ड में हैं उनको पता हो, बट आई फील कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो सबको पता होने चाहिए फॉर देयर ओन कॉन्शियसनेस, फॉर देयर ओन सेल्फ अवेयरनेस। बिकॉज अल्टीमेटली सिर्फ यही नहीं है जो हम देख रहे हैं, एक मटेरियलिस्टिक बेस ही नहीं है जो हम देख रहे हैं। Exactly. हम इन सब चीज़ों के भी बियॉन्ड हैं। तो आई थिंक जब लोग उस बियॉन्ड चीज़ों को भी थोड़ा बहुत समझने लगेंगे तो ये वाली चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये होगा या कब होगा या कैसे हो, मतलब क्यों होगा, आपको ये पूछना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको अपने फेवर में कैसे ला सकते हैं। एंड इफ इट्स पॉसिबल तो
you should go for it. So that's how it all happens. Okay, so we have a tarot card reader and we have a general message reading for all the मूलांक. एक बारी मूलांक बता दो कैसे कैलकुलेट कर सकता है कोई इंसान. So in the sense, ठीक है, तो हम मैसेज, जनरल मैसेज रीडिंग करेंगे. Let's go. Okay, so Mulank is basically on the date you are born on. So if you are born on 1, 10th, 19th, 28, your Mulank is going to be 1. So let's see what's the message for Mulank 1. Okay, Mulank 1, the message for you is the moon. That means कि आप एक डायरेक्शन पे जाना चाहते हो बट आप कंफ्यूज्ड हो कि हाउ टू गो देयर, या फिर एक होता है ना अनसर्टेनिटी का डर कि वो चीज़ आपको कैसी परसीव होगी, आप उससे कैसा जर्नी रहेगी. तो वो एक अनसर्टेनिटी का डर, एक फियर जो रिलेटेड है उस चीज़ से, उसको आप कई बार अपने ऊपर बहुत हावी होने देते हो. सो यू नो how you want things to be. आपके intuition is nice. This is more like a message what you need to listen, you know, in this phase basically. So आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी एक जो लेवल ऑफ फियर, एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी वो आपको परेशान करती है. सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज टू ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशन एंड लर्न अबाउट द थिंग्स. जिन चीज़ों के बारे में आपको डर लग रहा है उन चीज़ों के बारे में पढ़ लो, आप सीख लो, तो फिर वो अनसर्टेनिटी का जो पॉइंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा. एंड इवेंचुअली कुछ चीज़ें आपके लिए कैसे टर्न आउट होंगी वो आपको करके ही पता चलेंगी. तो अपने आप को स्टॉप मत करो. ऑल्सो डोंट ट्रस्ट पीपल अराउंड, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में बात ना कर रहे हो, वो शायद एक डिसेप्शन बना रहे हो कि शायद आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट आपको जो अच्छा लगता है वो आपको ही पता है. सो जस्ट गो फॉर व्हाट यू बिलीव इन. Okay, so मूलांक 2. Okay, let's go for Mulank 2. Mulank 2, if you are born on 2nd, 11th, 20 and 29. Yes. Okay. So the card I got for you is 7 of Pentacles. That means it is more of a phase of testing patience. आपने किसी भी चीज़ में अगर एफर्ट डाला हो, अगर आपने मे बी हो सकता है वो एक रिलेशनशिप हो सकता है वो आपका कुछ काम हो, प्रोफेशनली चीज़ें, या अपनी इंटरनल ग्रोथ हो, मे बी हो सकता है कि आप अपने ऊपर कुछ काम करना चाह रहे हो, बट वो जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको इतनी मतलब इतनी क्लियरली आपको दिख नहीं रहे. तो वो रिजल्ट्स जो है वो है, बट वो टाइम लेंगे आप तक पहुंचने में, बिकॉज आप कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हो, कुछ कॉन्क्रीट बिल्ड कर रहे हो. जो भी आपने काम करा है, जो आपने एफर्ट्स डाले हैं, उस पर आप ट्रस्ट रखो, बिकॉज रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे बट थोड़ा डिले करके मिलेंगे. तो उस डिले वाले प्रोसेस में जो आप अच्छा कर रहे हो वो करना मत छोड़ो, वो कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप वो कंसिस्टेंटली वो काम करते रहोगे तो आपको वो रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे इवेंचुअली मिलेंगे. एंड ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा. इट्स जस्ट थोड़ा सा टाइम जो आप एक्सपेक्टेड आपको लग रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट इवेंचुअली जो रिजल्ट्स आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेंगे. सो कीप योर एक्शंस इन दैट प्रोडक्टिव वे एंड यू आर गोइंग टू सी ग्रेट रिजल्ट्स सून. Okay, so मूलांक 3. Mulank 3, people who are born on 3, 12, 21 and 30. Mulank 3. Mulank 3, 6 of Wands. So I think this is more of a time जहाँ पर आप results enjoy करोगे. ठीक है, तो जो आपने एफर्ट्स डालने थे वो डाल लिए, एंड देर आर क्विकली यू वुड सी कि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में टर्न हो रही हैं. आप देखोगे कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू,
कि लोग जो है वो आपके जैसा कुछ करना चाहेंगे या आपको अप्रेज करेंगे जो भी आपने करा है, तो दे कैन बी अ गुड टाइम ऑफ इंजॉयमेंट, गेटिंग प्रेजेस फ्रॉम अदर्स. दे कैन ऑल्सो बी टाइम्स जब आपको प्रोफेशनली कुछ अचीव्ड लगेगा, ठीक है, कि आपने कुछ अच्छा किया एंड उसके लिए लोग आपको आपको encourage कर रहे हैं. They would also like to take guidance from you. They would also like to learn कि आपने वो चीज़ कैसे करी. बट इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि हो सकता है कि एक सेंस ऑफ ईगो जो है वो आप में आ जाए कि आपने इतना अच्छा किया एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर यू, दे वांट टू बी विद यू, ऐसा ऐसा. तो वो एक आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एरोगेंस जो है वो आ सकती है. उसकी वजह से मे बी जो लोगों ने आपका साथ दिया आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर सकते हो. सो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ टाइम जहाँ पर आप इंजॉय करो, इंजॉय द रिजल्ट्स, बट ऑल्सो बी हम्बल, बी ग्राउंडेड कि जो आपने अचीव किया इसको आप और कैसे ग्रो कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप जेन्युइनली लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो इसमें, एंड जो लोग आपके साथ थ्रू आउट द स्ट्रगल रहे उनको आप कैसे आई वुड से उनको आप कैसे अपने साथ लेकर चल सकते हो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, बट दिस इज मोर ऑफ अ नाइस टाइम. देयर कैन बी सम time for some positive travel as well. So that was Mulang 3. Now Mulang 4. Here. Let's Mulang see. 4. Okay, so if you are born on 4th, 13th, 22 and 31, let's see. Mulang 4 is King of Swords, and this means that this is more of a time to be practical in your approach. Mulang 4 overall वैसे भी प्रैक्टिकलिटी पे वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट इमोशनली भी कहीं ना कहीं उनके अप्स एंड डाउन्स काफ़ी जो है वो रहते हैं. बट दिस इज़ मोर ऑफ अ टाइम जहाँ पर एक आप डिसिप्लिन के साथ काम करो तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे. आपको अपने इमोशनल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं वर्नरेबल लग रहा होगा, बट आपको आई वुड से फॉर द टाइम बिंग वो चीज़ें एक्नॉलेज करनी है कि ठीक है यू आर फीलिंग दिस वे, बट उसके साथ साथ जो काम ज़रूरी हैं जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो लर्निंग्स आपको करनी है, उस पे आपको फोकस करना है. सो इट डजंट मैटर कि आपका मन कर रहा है वो काम करने का या नहीं. अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है, अगर आपने अपने लिए कुछ एक मे बी एक डिसिप्लिन रूटीन बनाया है या फिर कुछ सर्टेन एक्शंस आपने अपने दिन के लिए प्लान करे हैं, तो अगर आपको अपने मन का ना सुन के कि ये काम करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको ईदर वे वो काम करना ही है. कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो करनी ही है. डोंट लुक फॉर कि उसको करने के लिए आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक दैट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ. एंड यस, अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, इनिशियली आपको लग सकता है कि वो ब्लंट एडवाइस है, वो कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म के बेसिस पे आपको लग सकती है, बट हो सकता है कि वो एडवाइस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहे. सो डिलीवर शायद किसी के करने का तरीका वो थोड़ा ब्लंट हो सकता है, बट वो एडवाइस जो है वो आपके लिए बेटर हो सकती है. सो लुक फॉर इट कि उसको आप अप्लाई करके अपने लिए कैसे बेटरमेंट कर सकते हो. Okay. So Mulang 5. Mulang 5, if you're born on 5, 14 and 23. So let's see. Mulang 5 is 9 of Swords. So this can be a time of somewhere feeling vulnerable, overthinking, possibly not able to sleep well at the night. But it is also कि जितनी प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं वो उतनी बड़ी है नहीं. ठीक है, नाउ यू कैन फील कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है तो वो कैसे बड़ी नहीं है. इट्स जस्ट कि यू हैव योर वेज, आपको पता है कि उन तरीकों से कैसे निकलना है, बट आप अपने ऊपर ट्रस्ट कम कर पा रहे हो, आप अपने ऊपर डाउट बहुत कर रहे हो. तो वो वर्नेबिलिटी में आप इतना मतलब आपको इतना अराउंड लग रहा है उन चीज़ों को लेकर कि एक्चुअल में जब टाइम है कि आपके पास अच्छी चीज़ें हैं भी, मे बी कुछ रिसोर्सेज हैं भी, पर वो आपको लग रहा है कि पता नहीं वो आपके साथ कैसे काम आएंगे या नहीं काम आएंगे. सो यस, व्हाट यू आर फीलिंग इज वैलिड. आप जो फील कर रहे हो वो वैलिड है, बट उसको
अपने वर्नरेबिलिटी का एक वे मत बनाओ, ठीक है? आप यू आर अलाउड टू बी सैड, यू आर अलाउड टू फील लो, बट डोंट जस्ट ड्वेल इनटू इट, ठीक है? वो इमोशंस आपके साथ हैं, बट इवेंचुअली आप उससे कैसे बाहर आ सकते हो वो काम भी आप उस फोकस के साथ करो, क्योंकि चीज़ें अभी ऐसी भी नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी होप छोड़ दो. सो देयर आर still good things, positive things that you can look up to. So try to feel more gratitude towards the thing that you have right now, and also जो challenges हैं, you are very much capable to look beyond them and win over them. Okay, so Mulang Che. Mulang Che, if you're born on 6th, 15th and 24 of any month, Mulang Che. The card I got for you is 8 of Cups. So Mulang Che, this can be a time of emotional sensitivity, something that did not work for you, you are leaving behind. मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर शायद आप काम कर रहे थे कुछ टाइम से, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने अपना बेस्ट टाइम एंड एफर्ट दे दिया, ठीक है? और शायद आपको वहाँ से रिजल्ट्स भी मिले, शायद आपको अच्छा भी लगा, बट इवेंचुअली नाउ यू फील कि देयर इज़ मोर टू यू, देयर इज़ मोर फॉर यू. तो आपको लगता है कि और भी चीज़ें हैं जो आप डिस्कवर कर सकते हो, या फिर आपने अपना सारे टाइम एंड एफर्ट्स दे दिए, बट इवेंचुअली आपको लगता है कि आप बेटर और डिजर्व करते हो. सो देयर इट सीम्स टू बी मोर लाइक अ ट्रांजिशन, जहाँ पे आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो जिससे आप काफ़ी अटैच रहे हो. सो देयर इज डिसअपॉइंटमेंट टूवर्ड्स दैट कि आपको चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, बट इवेंचुअली आपको पता है कि वो चीज़ें आपके अलाइनमेंट में अब नहीं है. तो अब आप चाहते हो कि आप उससे ओवरलुक करो, अब आप चाहते हो कि आप उससे ग्रो करो. सो हो सकता है कि आगे का रास्ता आपको इतना क्लियर ना हो, बट यू आर सर्टेन कि जहाँ पर आप पहले रहे हो वहाँ पर अब आप नहीं रहना चाहते. तो आप वो एक जर्नी पे जाना चाहते हो, आप चीज़ें जो है वो पीछे छोड़कर न्यू डायरेक्शंस पे जाना चाहते हो. समवेयर द डिसअपॉइंटमेंट कैन बी देयर, बट यू नो दैट इट इज़ राइट फॉर यू. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू दिस ट्रांजिशन फेज. सो इट्स अ गुड फेज. Mulang Saath. Mulang Saath, if you're born on 7th, 16th and 25. Four of Pentacles. This seems to be a good phase for you in terms of stability. आप पोजेसिव हो सकते हो अपनी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको लेकर, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो उनको लेकर. तो कई बार वो पोजेसिवनेस इनसिक्योरिटी में भी बदल सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखना चाह सकते हो. बट द थिंग इज़ ट्राई टू फाइंड द बैलेंस. जो चीज़ें आपके पास हैं आप बिल्कुल उनको अपने पास रखना चाहो, बट ऐसा भी नहीं कि आप ओवर पोजेसिव हो जाओ या ओवर कंट्रोलिंग हो जाओ उन चीज़ों को लेकर. कि मे बी अगर लोग हैं जो आपसे आपके क्लोज हैं, बट यू ट्राई टू बी ओवर पोजेसिव टूवर्ड्स देम, तो वो चीज़ें फिर उनके लिए सप्रेसिंग हो जाएंगी. सो शो योर love towards them, show your gratitude towards them, but also allow that relationship to flourish, so that is very important. And possibly in the professional life जो चीज़ें आपने अचीव करी आप उनको लेके बहुत ज़्यादा possessive हो सकते हो कि ये चीज़ें मेरे पास ही रहें. So maybe अगर आपको अचीव करना है कुछ, अगर आपको ग्रो करना है, तो कुछ चीज़ें कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बट यू आर स्टिल पोजेसिव अबाउट इट कि वो पैसा आपको उतना रिटर्न देगा या नहीं देगा. सो आई थिंक एक वेल प्लान्ड वे में अगर आप चीज़ें करो, एक अच्छी रिसर्च करके आप चीज़ें करो, तो आप एक और बेटर स्टेबिलिटी अपने लिए अचीव कर सकते हो. सो डोंट बी अफ्रेड टू लेट गो सर्टन थिंग्स टू इवेंचुअली ग्रो टूवर्ड्स what you want to do. So that finding that balance is very important. And again, in relationships and love as well, be balanced. So that is the core that you can do. Eventually, business wise, profession wise, I think there are going to be good stable returns as well. So that's it. Mulang Art. Mulang Art, if you're born on 18th, 17th and 26th And 8. 8, yeah, sorry, 8. If you're born on 8th, 17th and 26th.
ओके, नाइट ऑफ कप्स. सो दिस इज मोर ऑफ अ टाइम जहाँ पर थोड़ा आप अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ टच में रहो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. बिकॉज ओवरऑल यू कैन बी समवन जो अपने इमोशंस हमेशा सप्रेस करके रखना चाहते हैं. सो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ टाइम जहाँ पर आप अपने इमोशंस फ्लो होने दो. आप जो फील कर रहे हो, जो आप मे बी किसी को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो आप खुल के करो. लेट योर इमोशंस फ्लो. जहाँ पर आप अगर आप अपने काम में भी कुछ सर्च कर रहे हो या अपने काम में भी कुछ नया करना चाह रहे हो, तो डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक. इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन just letting yourself be, being true to your emotions. That is important. Some creative aspects can be there. अपनी creativity के साथ touch में रहो. There seems to be some new opportunity, some new offer as well which can be coming for you. So be open for that. कुछ हो सकता है कि वो कुछ नया आपकी लाइफ में लेकर आए. So वो चीज़ों के साथ आप जितना कनेक्ट कर पाओगे, जितना आप उन चीज़ों को फ्लो में रहने दोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा. Okay, so last but not the least, Mulank Now. Okay, people born on 9th, 18th and 27th. Eight of Pentacles. So 9 is also a number of very much of hard work. बहुत मेहनत करके उनको वैसे भी चीज़ें मिलती हैं हमेशा. So this is the core message also कि बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत फोकस के साथ जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो वो चीज़ आप बहुत अच्छी बनाओगे. तो डोंट बी अफ्रेड टू पुट योर एफर्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स आपको साथ साथ दिखेंगे. तो जिस भी चीज़ों को, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप या फिर कुछ नई बॉन्डिंग्स हैं या नए काम में या फिर पढ़ाई में, अगर आप अपना फोकस डालोगे, अगर आप अपना एक डिसिप्लिन के साथ कुछ चीज़ें बनाओगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेगी. एंड कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते हो बहुत इन्फ्यूज्ड हो जाते हो उस काम में. तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपका कि आप एक फोकस के साथ काम कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. बट ऑल्सो डोंट निग्लेक्ट योर हेल्थ इन टू इट, क्योंकि आप काम में इतना बिजी हो सकते हो कि कि आसपास वाली चीज़ें आप निग्लेक्ट कर दो. सो येस, जो भी फोकस से आप काम कर रहे हो उस पर आप फोकस रखो, आप उस पर अपना 100% दो, बट ऑल्सो डोंट निग्लेक्ट योर सेल्फ इन टू दैट. Okay, so now we have a very fun segment, but जिसमें hamper नहीं मिलेगा. Okay. We have a rapid fire. So tarot or intuition? Intuition. Manifestation or hard work? Manifestation. One tarot card that represents you. The Empress. One habit everyone should start today. Meditation. One word that describes your journey. Magnificent. One thing people should stop believing about spirituality. That you don't need to be boring to be a spiritual person. Okay, so this is it for today. Hope you like this video. Like this video, subscribe and comment and share. We'll see you in the next episode.